Describe your positive findings. ऊंचा जरा बोलो, आवाज कोई नहीं आ रही. On general physical examination, I didn't check for jaundice, but jaundice is present in bladder. No palmar erythema, topine contracture or ST is present on physical examination. ऊंचा बोले, ऊंचा बेटा, ऊंचा बोले. While You said कि जी there was no jaundice, there was jaundice, but you didn't check for it. अजीब सी स्टेटमेंट है. अच्छा, और क्या मिला आपको जनरल फिजिकल में? palmar erythema. और No other stigmata of chronic. what are the stigmata of liver disease? Spider nevi, topine contracture, spider nevi. Did you check for spider nevi on chest? तो spider nevi कहाँ होते हैं? चेस्ट पर होते हैं. Did you check for gynecomastia? Did you check for loss of distribution of chest hair or axillary hair? Did you check for lymphadenopathy? All the lymph nodes you checked? Cervical. So how can you say you did not find any stigmata of liver disease? You did not check for spider nevi. So any stigmata, you did not find any stigmata of liver disease. So what was on the hands? Palmar erythema. So okay. What else? और बताएं. Bilateral fetal edema. ठीक है. आगे ये बोलते जाए. Abdominal examination में जी. no pulsation, karma ushaya, ठीक है. palpable, हाँ. 4 fingers below the first margin. I check for the liver span. Why? तो आप कम से कम वो तो फील करती ना, क्या नाम है उसका, अपर बॉर्डर तो परकस करती किया था, कौन सी स्पेस में था? सो और लिवर के बारे में क्या बताएं? मार्जिन मुझे रेगुलर अभी स्प्लीन मैंने चेक किया नहीं की. यस. अच्छा, ठीक है. और व्हाट एल्स यू नोटिस्ड? ग्रोथ साइंस कोई विजिबल अच्छा. और So considering consolidate your all positive findings and tell me your DDs or your diagnosis. chronic liver disease, On what basis? ascites, chronic liver disease. And सिर्फ chronic liver disease. So you said कि it is ascites and nothing else. So can't it be congestive cardiac failure Ascites is better. with hepatomegaly? Can't it be right heart failure? Right heart failure में हो सकता है आपका ascites भी और liver भी enlarged हो सकता है. Because my tender Not necessarily. अच्छा, क्या चेक करना चाहिए आपको to differentiate between the hepatomegaly of right heart failure and hepatomegaly of chronic liver disease? Jugular vein. So did you check JVP? So you did not check. So what is your now diagnosis or differential diagnosis? chronic liver disease most likely Due to? heavy हाँ. chronic liver disease. On what basis बता देना, justify कर. कि आपको क्या ऐसा चीज़ मिली कि आप इसको chronic liver disease कह रही हैं and it's not right heart failure? अगर तो JBP रेंज होती तो राइट हार्ट फेलियर वो तो आपने चेक ही नहीं था की. तो अब आप बता दें ना, आप जो चीज़ नहीं चेक की वो तो छोड़ दें. palmar erythema जो है जो chronic liver disease. हाँ हाँ. तो वो सिर्फ वो जा रहा है. और कौन सी कंडीशन है जिनमें पामर एरिथीमा आ जाता है? और लिवर बस एक क्योंकि सी भी बैठी अमीर हमजा. किडनी डिजीज में भी आता है. पामर एरिथीमा क्या शो करता है? इट इज हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन. लिवर डिजीज में ये क्यों होती है? वो ईस्ट्रोजन की मेटाबॉलिज्म करता है लिवर. तो जब ईस्ट्रोजन की मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी
तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, उसी की वजह से गायनेकोमेजिया होगा, उसी वजह से लॉस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर होगा, एक्सिलरी हेयर भी लॉस होगा, टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी, ठीक है, और साथ हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन होगी। थायरोटॉक्सिकोसिस में भी हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन होती है, और प्रेगनेंसी में ऐसा होता है पामर एरिथ्मिया, ठीक है। सो हाई आउटपुट जितनी भी कॉजेज हैं जिसमें कार्डिक आउटपुट हाई हो जाए उसमें पामर एरिथ्मिया होता है। पामर एरिथ्मिया इज परहैप्स नॉट स्पेसिफिक फॉर दैट, it can occur in many other conditions. So your diagnosis as kid is most likely chronic liver disease, and on number 2 you are plus minus kid can be right heart failure. So how would you then investigate and reach the diagnosis? अच्छा, तो उसमें आप what do you expect to see in chronic liver disease and what do you expect to see in right heart failure? Shrunken size होगा, इसका तो नहीं है shrunken size. We're talking about this patient. So you did not find shrunken size. और what else? Obstruction किधर? हेपेटिक वेन पे, ठीक है, तो सही है। तो डू यू थिंक दिस इज हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन? अब आपने चेंज कर दिया अपना डायग्नोसिस। इज इट ए कॉमन कंडीशन हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन? कितनी को देखते हैं आपने मरीज? कोई और चीज हो सकती है कि DCLD भी हो और लिवर भी इनलार्ज्ड हो? ठीक है, सो देन और क्या आपको अल्ट्रासाउंड पे नजर आएगा? एंड व्हाट नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन विल यू प्लान? लेकिन ये सारी चीजें जो आप बता रही हैं ना, एसाइटीज और ये सारा, ये राइट हार्ट फेलियर में भी आ गया। प्रो BNP लेवल तो बहुत सी चीज़ों में और भी रेस्ड आ जाता है। कौन कौन से में रेस्ड आता है? तुम लोग बड़े शौकीन हो ICU वाले लोग, बताओ। हार्ट फेलियर में हार्ट फेलियर में तो आते ही आता है, रीनल फेलियर में आता है, ठीक है, ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, स्पाइरोनोलेक्टोन, ये सारी चीज़ें जो है उसको इफेक्ट करती हैं। और मुझे भूल गया, वो बड़ा रट्टा है मेरा, तुमने पढ़ लिया होगा, कार्डियोलॉजी पढ़ रहे हो? मैं हाँ, सही खत्म होने वाली है। तो उसमें BNP आया है ना? किस तरह का पढ़ाई कर रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं है। BNP को तुम अगर निकालोगे ना तो उसमें इतनी लंबी कॉजेज हैं कि इसमें फॉल्सली रेज्ड आता है, इसमें फॉल्सली लो आता है। सो प्रो BNP इज नॉट स्पेसिफिक एट ऑल। और कितने का टेस्ट है ये? 2400 का टेस्ट है। तो यहाँ पर हालत ये है कि वो मरीज जो फौत हुआ है तो उसको 4000 मिली के दे दिए उसको एम्बुलेंस के लिए। अच्छा, सो यू सी कि किस तरीके से आप लोग फंसते हैं। हाउ वुड यू ट्रीट दिस पेशेंट? क्या है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इन दिस पेशेंट? क्या करेंगे आप? ऊंचा बोले, आपकी आवाज़ ना बिल्कुल नहीं आ रही। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कब करते हैं? GLT पढ़ा था किसके अंदर? एसाइटीज में जब सोडियम जो है वो होता है कम होता है, कितना? 125। लेस देन 125 जब होता है तो उस वक्त आप फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अदरवाइज आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। जी नेक्स्ट बता दो ना, हमें नहीं पता, हम इस मरीज की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम इस पेशेंट की बात कर रहे हैं, ये पेशेंट आपके सामने है। पता है क्या बात है, जो भी आपका इंचार्ज है ना ब्लड बस्टी के, बेटा बात कर